तो ट्रंप की अमेरिका में वापसी हुई है, ना सिर्फ वापसी हुई है बल्कि जोरदार वापसी हुई है। तमाम अनुमानों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के 7 जो स्विंग स्टेट्स थे, सब ने ट्रंप को गले लगाया है और ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, ये अब तय हो गया है। ट्रंप ने जीत के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में अमेरिका को गहरे और बहुत सुहावने संदेश देने की कोशिश की है। तो ट्रंप की जीत से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे और ट्रंप ने क्या कहा अपनी जीत के बाद, ये भी बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप को 276 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अमेरिकी चुनाव में शानदार जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। चुनाव जीतकर इतिहास रचने के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लिए गोल्डन एज की शुरुआत है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को दोबारा से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनका आने वाला हर पल अमेरिकी लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित होगा। Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're gonna... ट्रंप ने अपने संबोधन में युद्ध का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध के में विश्वास नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे और युद्ध को रोकने जा रहे हैं। Uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जेडी वेंस ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो ट्रंप के नेतृत्व में लोगों के सपनों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams,
for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मस्क सुपर जीनियस हैं और उनकी मदद से अमेरिका की काफ़ी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। Elon, you have something called Starlink, is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast, it was incredible. And it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. Hits the ball a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. और ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। और चुनाव के बाद अमेरिका का मूड, माहौल और विश्लेषण, तमाम चीज़ें लेकर वाशिंगटन डीसी से हाजिर हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। संजय जी बताइए, चुनाव नतीजे चौंकाने वाले रहे, कांटे की टक्कर की बात थी, लेकिन ट्रंप तो पूरी तरह से स्विंग कर गए। तो चुनाव का नतीजा सामने और साफ, डोनाल्ड ट्रंप नए प्रेसिडेंट बनेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के और वो पद संभालेंगे 20 जनवरी को। अब से तब तक बाइडेन ही प्रेसिडेंट रहेंगे, लेम डक प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर पाते हैं, क्या वो अपने वायदे पूरे कर पाएंगे या नहीं। चुनाव के बाद उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे। अक्सर नेता लोग ये कहते हैं, कहना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। बहुत भारी चुनौतियां हैं अमेरिका के सामने। एक तो महंगाई पे काबू पाना, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है इसके कारण। उन्होंने कहा है कि वो इकोनॉमी को संभालेंगे, कहाँ तक संभाल पाते हैं। दूसरी बात इससे एक तरह से जुड़ी हुई है इमिग्रेशन पर रोक लगाना। ट्रंप का कहना है कि वो इमिग्रेशन को रोकेंगे, जो इमिग्रेशन ख़ास तौर से इलीगल इमिग्रेशन को रोकेंगे, जो दक्षिण में मेक्सिको के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो यहाँ आ चुके हैं उन्हें वापस भेजेंगे। और ये कई लाख लोग हैं, क्या ये संभव होगा, कैसे संभव होगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ने अक्सर कहा है कि इन लोगों को वो वापस अवश्य भेजेंगे। दूसरी ओर अगर बाहर देखें तो यूक्रेन में समस्या है। ट्रंप का कहना है कि वो युद्ध को समाप्त करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? क्या रूस अपनी फ़ौजें वापस ले जाएगी, जिस इलाके पे कब्ज़ा किया है वहाँ से हट जाएंगे, या ज़ेलेंस्की मंजूर करेगा कि ठीक है आप जहाँ हैं रूसी टिके रहें? ना ज़ेलेंस्की ये कहने वाला है, ना पुतिन अपनी फ़ौजें वापस बुलाने वाला है। बहुत कठिन जो है चुनौती है यूक्रेन में। गाज़ा पर देखिए क्या ट्रंप नेतान्याहू को कह पाएंगे कि जो गाज़ा में आप मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, लेबनान में कर रहे हैं, वो रोकें। ये भी बहुत कठिन होगा। लेकिन जब भारत की बात आए तो ये अवश्य एक अच्छा संकेत है, क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच में काफ़ी अच्छे नाते हैं। दोनों अक्सर मिल चुके हैं, एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। उनके बीच में जिसे एक पर्सनल रैपोर कहा जाता है वो है, और वो जो है इसको लेकर कई जो समस्याएं हैं उनका समाधान कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रंप बनेंगे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के। और कई जो
अन्य मुद्दे हैं उनमें भी आगे तरक्की होने की अच्छी संभावना है, जैसे कि ट्रेड हो गया, जैसे कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो गए इंडो पैसिफिक में या साउथ एशिया में ही। तो भारत के लिए एक नया द्वार खुला है अमेरिका में, और ये जो दोस्ती है एक किस्म की ट्रंप और मोदी के बीच में, ये भारत और अमेरिका के संबंधों को अच्छा पक्का मजबूत कर सकती है। और ट्रंप की जीत के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया है। सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 902 पॉइंट चढ़ा और निफ्टी 271 पॉइंट। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा उछाल आईटी शेयरों में रहा। रियल्टी, तेल, गैस, पीएससी शेयरों में भी खरीदारी रही। इसके अलावा एनर्जी, मेटल, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। और ट्रंप की जीत का आईटी सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, ये कहना है कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शेनॉय का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में दीपक शेनॉय ने ट्रंप की जीत का भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा, इस पर बात की। एक तो आईटी कंपनीज खुद अपने टैक्सेस जो यूएस में पे करेंगे, क्योंकि इनकी सारी जो आईटी कंपनीज है उनके यूएस सब्सिडीज होती हैं वो यूएस में ही टैक्स पे करते हैं, तो उनके डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट एक होगा और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी के बाद आई थिंक वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है और अगले साल के बजट्स में लोग फिर जैसे कंपनीज हैं अपने अगले साल की जब स्पेंडिंग का मतलब प्लानिंग करेंगे, तो आई थिंक आईटी कंपनीज को ज़्यादा एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आगे बढ़ के क्या होने वाला है। हमारे हिसाब से आईटी कंपनीज को एटलीस्ट टेम्पोररीली थोड़ी सी रिप्रीव मिलेगी, लेकिन उनके जो लार्जर थ्रेट्स हैं एक वो कि जैसे एआई आके उनके बिजनेस को और आई थिंक एक तरह से कंप्रेस करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अब 200 लोग करते थे अभी सुनने में आया कि 20 लोग भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी लग रहा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा और अमेरिका में ऑटोमेशन बढ़ेगा क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान होगा, एआई पे ज़्यादा ध्यान होगा। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक उनके नेक्स्ट ईयर 2025-26 के बजट्स विल बी बेटर इन देयर फेवर। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत का असर कमोडिटी मार्केट पर भी पड़ सकता है। क्रूड से लेकर बेस मेटल्स तक की कीमत पर ट्रंप की नीतियों का असर दिख सकता है। डिटेल लेते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। बताएं मनीषा जी, ट्रंप की जीत का किस तरीके का असर कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिल सकता है? डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद हमने काफी इंपैक्ट आता हुआ देखा यहां पर ग्लोबल कमोडिटीज एंड करेंसीज पे। ट्रंप ने ये कहा कि कच्चा तेल उनको छोड़ दिया जाए, ये लिक्विड गोल्ड है और यूएस के पास सबसे ज्यादा तेल है, सऊदी अरेबिया और रशिया से भी ज्यादा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना डेट पे ऑफ कर देंगे, टैक्सेस को घटाया जाएगा और चाइना के पास वो नहीं है जो यूएस के पास है। इस तरह की स्टेटमेंट्स का हमने एक नीजोक रिएक्शन अक्रॉस प्राइसेस आता हुआ देखा। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां भावों में गिरावट देखने को मिली। यूएस इन एनी केस यहां पर रिकॉर्ड कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है और जिस तरह से हमने यहां पर अंडर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखी, काफी सारे यहां पर स्ट्रेन्स भी थे, वो शायद अब ट्रंप के आने से दूर होते हुए नजर आएंगे और थोड़ी सी बेरिशनेस यहां पर प्राइसेस में बन सकती है। दूसरा, यहां पर अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 14 हफ्ते के हाईज पर यहां पर कारोबार है, जिसका असर हमने रुपए में आता हुआ देखा, जो कि रिकॉर्ड लोज पे बना। डॉलर इंडेक्स में तेजी का असर यहां पर कमोडिटीज पर भी आया, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली थी, लेकिन बिटकॉइन में यहां पर जोरदार तेजी आई। ऑल टाइम हाईज $75,000 के हमने यहां पर बनते हुए देखे। जहां तक मेटल्स की बात है, यहां पर भी मुनाफा वसूली रही। सोने और चांदी दोनों में एक तो डॉलर की तेजी और दूसरा क्योंकि अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर अनसर्टनिटी थी वो हटती हुई नजर आई, तो वो जो प्रीमियम था प्राइसेस में वो हमने जाता हुआ देखा।
यही हाल काफ़ी हद तक मेटल्स का भी है। चाइना के साथ यूएस के संबंध अब कैसे रहेंगे, किस तरह के टैक्सेस टैरिफ्स लगाए जाएंगे, उसका कुछ कंसर्न है बाजार में, जिसकी वजह से 2% तक की गिरावट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इन सभी मेटल्स में देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद आपको ये बात दिला दें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो हो चुके हैं, आगे किस तरह की नीतियां बनती हैं उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन अब कल यूएस की फेड मीटिंग है, चाइना की कांग्रेस मीटिंग जारी है, जहां से कुछ स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन भी है। तो अब इस हफ्ते में ये 2 मेजर इवेंट्स हैं जिन पर बाजार की नजर है, और कमोडिटीज और करेंसी बाजार अब यहां से क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। और ट्रंप की वापसी के क्या मायने हैं और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के साथ संबंधों पर क्या असर होगा, आज आवाज अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। दिवाली की छुट्टियों के बाद सभी कारोबार फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन डायमंड यूनिट्स में अभी भी वेकेशन चल रही है। क्या है इसकी वजह और कारीगरों की क्या है स्थिति, जानने के लिए देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। दिवाली के बाद से हीरा कारखानों में सन्नाटा पसरा है। जहां मशीनों की आवाज गूंजती थी, वहां एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा। इक्का दुक्का कारीगर ये सोचकर आते हैं कि शायद काम शुरू करने का फैसला हुआ हो, लेकिन उन्हें भी निराशा ही हाथ लग रही है। अभी तो बहुत खराब स्थिति है, 1.5 महीने से कोई तनख्वाह या पगार मिली नहीं है। आगे ऐसी संभावना है कि और लंबा हो सकता है। अब कैसे गुजारा होवे वो अब क्या बतावे, अब मन की बात मन में ही है। बहुत दिक्कत आ रही है गुजारा करने में। फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं अहमदाबाद में। अकेले गुजरात में 20,000 से ज्यादा हीरा कारखाने और 24 लाख से ज्यादा कारीगर हैं। भारत के 10 में से 9 हीरों की पॉलिशिंग और कटिंग का काम गुजरात में होता है। दुनिया में युद्ध का माहौल होने के कारण लोगों ने सोने में निवेश करना शुरू कर दिया है और डायमंड की हालत खस्ता हो गई है। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब महीने से ज्यादा छुट्टियां रही। कारीगरों की तनख्वाह बंद है और कारखाने कब शुरू होंगे वो खुद कारखाना मालिक भी नहीं बता पा रहे। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डायमंड में इतना लंबा वैकेशन यानी 1 से 1.5 महीने का सबने किया है जारी। कि इस बार क्या है कि डिमांड बहुत कम है और जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड में युद्ध का माहौल बना रहता है, जब तक युद्ध का माहौल बना रहेगा तब तक तो डायमंड में कोई सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी हमने 1.5 महीने का वैकेशन किया है, लेकिन उसको और भी खींचना पड़ सकता है। जब तक माल की डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक यूनिट शुरू नहीं हो सकता। हीरो को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अभी हीरा कारोबार की चमक फीकी पड़ी हुई है। दिवाली जैसे माहौल में भी लाखों कारीगरों के घर एक फूटी कोड़ी तक नहीं आई, और अगर दुनिया में युद्ध जैसे माहौल रहे तो हालत बद से बदतर भी हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। मशहूर लोक गायिका और महापर्व छठ की आवाज रुक गई। भोजपुरी, मगही और मैथिली की सबसे बड़ी गायिका शारदा सिन्हा का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 1952 में बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा 72 साल की थी। ये एक मार्मिक संयोग है कि छठ के गीतों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर शारदा सिन्हा का निधन छठ पर्व के दौरान हुआ है। उन्हें शादी विवाह के संस्कार गीतों, लोक गीतों और बॉलीवुड के गानों के लिए भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है। शारदा सिन्हा को पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान दिए गए थे। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। वहीं सोनू निगम, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कला और फिल्म जगत की हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल सुबह 8 बजे पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब कम पैसे वाले स्टूडेंट्स का अच्छे इंस्टीट्यूट में
हायर स्टडी का सपना नहीं टूटेगा। केंद्र सरकार ने बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए योजना शुरू की है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना पर मुहर लगा दी है। इसमें 3% की ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। इसके अलावा एफसीआई के बजट को भी सरकार ने दोगुना कर दिया है। अब इसे 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस साल फरवरी में जो ऑथराइज्ड कैपिटल है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वो बढ़ा के 10,000 करोड़ से बढ़ा के 21,000 करोड़ रुपीस किया गया था। और आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि फ्रेश इक्विटी कैपिटल 10,700 करोड़ रुपीस का एफसीआई में इन्फ्यूज किया जाएगा। सो दैट मीन्स एफसीआई विल बी एबल टू डू much more than what it has been doing, and this is in line with what Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized कि किसानों का वेलफेयर, अन्नदाताओं का वेलफेयर हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। इस बार दिवाली पर लॉन्ग वीकेंड के बावजूद होटल और एयर फेयर महंगे होने के चलते घूमने फिरने वाले कम निकले। लेकिन ईयर एंड पर आप देश विदेश में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। दिवाली पर एयर फेयर 2 से 3 गुना और होटल रेट 30 से 50% बढ़े हुए थे। लेकिन अब क्रिसमस, ईयर एंड और फरवरी तक आपके पास बजट में देश विदेश घूमने के कई विकल्प हैं। अगर देश में घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 50,000 में आप कश्मीर, दार्जिलिंग, केरल, असम या शिमला मनाली का पैकेज हासिल कर सकते हैं, वो भी हवाई किराए, 4 स्टार स्टे और साइट सीइंग के साथ। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश का पैकेज सिर्फ 35,000 में मिल सकता है। विदेश की बात करें तो 75,000 प्रति व्यक्ति तक में आप थाईलैंड, बाली, वियतनाम, मलेशिया घूमने जा सकते हैं, जबकि 70,000 में सिंगापुर, 65,000 में दुबई और 50,000 में श्रीलंका जा सकते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद से बात करते हैं तो हॉट डेस्टिनेशन वियतनाम है, बाली है, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, दुबई, अबू धाबी है और थाईलैंड जैसे कंट्री जो है एशियाई कंट्रीज, उसमें हमें थ्रू आउट ईयर एक फ्लैट रेट में घूमने को मिलता है, जहाँ पे हम 5 नाइट 6 डे और 6 नाइट 7 डे के पैकेज लेके फैमिली के साथ घूम सकते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच आने वाली छुट्टियों के लिए लोग अभी से बुकिंग करवा रहे हैं, इसलिए आगे पैकेज महंगे हो सकते हैं। एक्चुअली हम दिवाली में फैमिली के साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन बजट बढ़ गया था, इसलिए हम इस क्रिसमस में जाने वाले कश्मीर में फैमिली के साथ। मिडिल क्लास परिवारों में घूमने का चलन बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दिवाली के दौरान घूमना फिरना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले 2 महीने की छुट्टियों में आप मनचाही जगह पर अपने बजट में वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। अगर आप अपना खुद का कारोबार स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप गुरुकुल। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जा सकता है, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश कर सकते हैं। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाना है, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारी करनी है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें।